Commerce Science, Panvel has started this lecture series. Myself, Rajshri Mhatre from CSIT department. Subject is Software Project Management and lecture is 8. Today we'll learn about, or we will discuss about the taxonomy of estimating methods. There are, see, what is mean by taxonomy? Taxonomy means a classification. In simple words, it's a classification. Now we will see the different methods of classification or with the classification of estimating methods. First is bottom-up, which is based on the activity-based and analytical based. Second one is parametric algorithmic models, for example, function point. Next is experts' opinion, just guessing. Then is analogy, which is case-based or the comparative. Next is Parkinson and price to win. Parkinson laws we have learned in last lecture. We'll start with the bottom-up versus top-down. See, what is bottom-up? Here in bottom-up is a classification, we can say, a small classification of for estimating methods. First is bottom-up. Use with no past project data. And that have to be so quite consuming. Use when you have no data about similar project. Next, I learned out project planning in the to the should know like also that will has to main or has to recommend the cost we can the cost or the result of the software. But okay, mathematics first related या details नहीं हो या or that project is not आइडेंटिफाई ऑल योर टास्क, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट टास्क है उस प्रोजेक्ट में लगने वाले उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. ये क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग है बट हमें करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी पास्ट प्रोजेक्ट. जो हमने लास्ट टाइम ये लेक्चर में पढ़ा कि कोई हिस्ट्री प्रोजेक्ट नहीं है हमारे पास. एंड व्हेन वी आर यू गोइंग टू यूज दिस बॉटम अप मेथड, जब हमारे पास कोई भी सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट नहीं है. नेक्स्ट इज टॉप डाउन. प्रोड्यूस एन ओवरऑल एस्टिमेट based on the project of cost drivers based on past project data. Divide overall estimate between the jobs to be done. Bottom up मतलब हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई एस्टिमेट नहीं हम कर सकते. Don't have to judge it and we can't judge it also. And next there is a top up जहाँ पे ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट जो कॉस्ट ड्राइवर्स है हम वो निकाल चुके. We have estimated all the drivers and all the project cost. Now based on the past project data, that means now we have a past project data in top up. अगर वो हमारे पास है तो now we are using top down वाला concept method, and now we are using the now we have to use here the based of on the past project we can use the data which will help us to estimate the cost of this project and divide overall estimate between the jobs to be done. I mean, now whatever jobs has to be done to estimate this to estimate or to implement this product, we are going to divide the whatever cost it has done. The amount हम बोल सकते हैं. Now we are going to estimate it. We can just an amount also not, but also the time, the period, or we can schedule it easily because we know now what time and what क्या टाइम लगेगा, कितना कौन से जगह पे हमें ज्यादा टाइम देना है, कौन से काम के लिए कौन से फेज के लिए हमें कम टाइम देना है. सो नाउ इट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी हैव द लास्ट प्रोजेक्ट सिमिलर प्रोजेक्ट का डेटा है हमारे पास. ओके, नेक्स्ट वन इज बॉटम अप एस्टिमेटिंग. ब्रेक प्रोजेक्ट इनटू अ स्मॉल एंड स्मॉलर component. Stop when you are not stop when you get the what one person can do in 1 or 2 weeks. Estimate cost for the lower activities. At each higher level, calculate the estimate by adding the estimate for lower levels. यहाँ पे अभी stop bottom up estimating में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो सबसे smaller to smaller components में प्रोजेक्ट को ब्रेक कर लो. जहाँ पे कम अमाउंट या कम टाइम लगने वाला है वहाँ पे मिनिमम स्टाफ देकर फटाफट खत्म कर लो विद इन 2 to 1 day. अगर वो कोई एक पर्सन मिल जाए हमें वो कैन हैंडल दिस, उसको खत्म वहीं पे कर लो. उसको मतलब कंप्लीट दैट टाइम प्रोजेक्ट और वर्क ऑन दैट टाइम. एस्टिमेट लेवल जो लोवेस्ट लेवल पे एक्टिविटीज है वो मतलब जल्दी करके उसको खत्म करना चाहिए हमें. और जो हायर लेवल के कॉस्ट एस्टिमेशन है
उनको थोड़ा लोअर लेवल से उसको ऐड कर करके मतलब एडिंग लोअर वाला, सी अगर कुछ छोटी जगह है उस पर हम थोड़ा सा टाइम कम देकर उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन लोअर वालों को जो हायर लेवल के जो प्रोजेक्ट है, हायर लेवल के प्रोजेक्ट मतलब हायर लेवल का जो फेस है उसके लिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो लोअर टाइम वाला जो बचा हुआ टाइम है हम वो हायर में यूज करते हैं। टाइम बोल लो, कॉस्ट बोल लो, साइज बोल लो, मेजरमेंट्स बोल लो, जो भी है जो लोअर लेवल में हमें बच जाएगा वो हम हायर लेवल में यूज कर सकते हैं। दैट इज एडिंग द एस्टिमेट फॉर द लोअर लेवल्स। नेक्स्ट इज टॉप डाउन एस्टिमेशन। टॉप डाउन एस्टिमेशन में क्या है, हिस्टोरिकल पास्ट प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, तो उसमें क्या क्या होगा। फर्स्ट, इट इज एसोसिएटेड विद द पैरामीट्रिक और एल्गोरिथमिक मॉडल्स, मतलब हमारे पास ऑलरेडी एल्गोरिथमिक मॉडल्स है तो हम उसी में डाल के हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला फॉर द पैरामेट्रिक मॉडल्स, the formula for the parametric models are effort equals to system size multiplied by productivity rates. Now what happens जब effort को हम अगर multiplied करें तो हमें क्या multiply करना है, एक तो system की size अगर बड़ा है तो, और उसकी productivity rate। ओके मतलब कितना बनाना है, मुझे 10,000 प्रोडक्ट बनाना है और उसकी साइज छोटी है तो एफर्ट्स थोड़े कम ज्यादा लग सकते हैं, कम लगेंगे। प्रोजेक्ट बड़ा है ऊपर से प्रोडक्टिविटी का रेट भी मतलब प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है तो एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, बंदे ज्यादा लगेंगे। द मॉडल ऑफ फोरकास्टिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट्स हैज टू कंपोनेंट्स। अभी यहाँ पे जो डेवलपमेंट फोरकास्टिंग हो रही है उसके दो कंपोनेंट्स है। एक है सिस्टम साइज इज द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द अमाउंट ऑफ वर्क। सिस्टम साइज मैटर करता है जहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क ज्यादा है। फिर प्रोडक्टिविटी रेट इज अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग द रेट ऑफ वर्क एट द ईच टास्क कैन बी डन। अभी प्रोडक्टिविटी रेट क्या हेल्प करेगा, ये जो मेथड है क्या एक्सेस करेगा, तो रेट ऑफ वर्क मतलब कितना काम किया जाएगा एक टास्क के ऊपर, कितना टाइम हम वेस्ट कर सकते हैं या हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉप डाउन एस्टिमेशन में एक और पार्ट है, दैट इज अदर पैरामेट्रिक मॉडल्स। हम यहाँ पे अलग अलग एल्गोरिदम्स या मॉडल्स यूज कर सकते हैं। ओके, पैरामेट्रिक मतलब रिलेटेड वाला। The function point is considered more with the task sizes. Now, next one is COCOMO is considered more with the productivity rate. COCOMO 2, COCOMO 1 ये जो मॉडल है वो हम कॉस्ट एस्टिमेशन वो आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन बाय एनालॉजी। It is also called as case based reasoning. केस बेस्ड रीजनिंग मतलब क्या, हमने बिजनेस केस के बारे में पढ़ा था, उस केस बेस्ड रीजनिंग भी हो सकती है एस्टिमेशन। फॉर न्यू प्रोजेक्ट द एस्टिमेटर्स identifies the previous completed project that have similar characteristics to it। मतलब जो पास प्रोजेक्ट है उसके बारे में है, हम उसको हेल्प कर सकते हैं, मतलब लाइक वी आर गोइंग टू यूज इट, आराम से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द न्यू प्रोजेक्ट इज रेफर्ड टू एन टारगेट प्रोजेक्ट और टारगेट केस। नए नए प्रोजेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं टारगेट करने के लिए, टारगेट प्रोजेक्ट और टारगेट केस के। द कंप्लीट प्रोजेक्ट आर रेफर्ड टू एन सोर्स प्रोजेक्ट और द सोर्स केस। मतलब जो न्यू प्रोजेक्ट है वो हम टारगेट प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो हम उसको एज अ सोर्स केस के लिए यूज कर सकते हैं। सोर्स केस मतलब वही हम उसके जो ड्रॉबैक्स या है थे, उसका रिस्क थे, उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो हम उसको यूज कर सकते हैं। The effort recorded for matching the source case is used as a base estimate for the target project। तो whatever efforts हमने लिए हैं जो रिकॉर्ड करने की, जो सोर्स केस मैच होगा, जो सोर्स केस मैच होगा वो हम एस्टिमेट टारगेट करने के लिए प्रोजेक्ट हेल्प कर सकते हैं। मतलब जो भी पास प्रोजेक्ट से हमें डेटा मिलेगा वो बहुत ज्यादा हमें हेल्प करेगा हमारा न्यू प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए, उसका बजट उसका बजट डिसाइड करने के लिए हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज द एस्टिमेटर कैलकुलेट्स एन एस्टिमेट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट बाय adjusting the base estimate
based on the difference that exists between the two project. अभी हम दो प्रोजेक्ट्स में कैलकुलेशन है, एस्टिमेट करना है हमें कि एडजस्ट करना है कि बेस्ट एस्टिमेट कैसा मतलब कितना होना चाहिए, जो बेसिक यूजुअल मतलब बेसिक चीजें हैं. There are software tools that automate this process by selecting the nearest project case to the new project. Actually, एक सॉफ्टवेयर टूल है जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा कि मैंने इतने रिक्वायरमेंट्स डाले तो उससे नियरेस्ट मैचिंग वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है जिससे मैं बेसिक डेटा यूज कर सकती हूँ या बेसिक इंफॉर्मेशन यूज कर सकती हूँ या बेसिक टूल यूज कर सकती हूँ टू मेक माई प्रोजेक्ट. Next is some software tools perform that the measuring the Euclidean distance between the cases or between the projects. Now there are some tools actually will measures the Euclidean distance. मतलब जो distance है उन दोनों में Euclidean distance वो दोनों projects में वो measure करके हमें बता सकता है. That will help us more to make our project more flexible. Next is the parametric model. Is a set of related mathematical equations that incorporates variable parameters. A scenario is defined by selecting the value for each parameter. Now, where the software project managers use software parametric models and parametric estimate tools to estimate the project duration, staffing, and cost. Now, what happens in parametric models? They are setting the mathematical equation for a parameter, for variable parameters. A scenario is defined by selecting values for each parameter. अब एक amount decide किया जाता है to analyze it. See here, this is parametric models. Now another model focuses on the productivity. For example, COCOMO. ठीक है, the line of code is FPS, etc. and input. Now system size is given. Now estimate effort is given. Productivity efforts factors are given. Now this will help us to understand that what is going to be get after completing this estimation tools. See, this parametric tools models, what they will help us, they will make us estimate, they will make us the parametrical estimate tools which will help us to understand the project का duration कितना होगा, उसका staffing कितनी होगी और उसका cost कितना लगेगा. स्पेशल हम बोल सकते हैं पैरामीटर एक अमाउंट दे जाता है हमें जिसमें हमें पता लग जाता है कि ड्यूरेशन कितना लगेगा उस स्टाफ के लिए या उसके स्टाफिंग के लिए या कॉस्ट के लिए. नेक्स्ट इज एक्सपर्ट जजमेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. वी नीड एन एक्सपर्ट जजमेंट इज अ टेक्निक इन अ प्रोजेक्ट planning process that refers for making the judgment based on skills, expertise, or specialty languages in the particular area. The expertise can help be based on an individual training or the educational background, career experience, or knowledge of a product or the market. Now, what is going to happen here? Judgment, expert judgment, what they will do here? They will use a technique in the project by making a planning process में कि क्या रेफर करेगा, मतलब वो what he will do because of his best judgment he will make based on the skill, based on his skill, based on his expertise, based on his specialization knowledge in the particular area. The expertise will help us to train or to educate the background or the career experience or the knowledge of the product and the market. अभी this expert what he will do, उसका इतना ज्यादा एक्सपर्टशिप होने की वजह से लाइक उसके एक्सपर्टीज कहाँ है, तो उसके नॉलेज में, उसके करियर एक्सपीरियंस में, उसके बैकग्राउंड में, तो उसको मार्केटिंग वैल्यू पता है इस प्रोडक्ट के बारे में, उसका क्या होने मतलब प्रोडक्ट का अगर उसको इम्प्लीमेंट करो तो उस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट और लॉस निकलेगा. उसके हम बोलते हैं ना, एक एक्सपर्टी राय लेनी चाहिए, मैंने एक्सपर्ट जजमेंट लेनी चाहिए और एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए. दिस इज ओपिनियन एंड एक्सपर्ट ओपिनियन. Okay, thank you. We will see next topics in the next lectures.